जुड़े हैं T20 अड्डा में आपके साथ। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आपसे मिलने का मौका होता है, खासकर क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए। It's always a pleasure to be here. Drop a word, say hi, let me know how you're all doing. आज मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे the very funny Saurabh Pant and former India A, former domestic cricketer and IPL winner Manvinder Bisla, a regular feature on T20 Adda here on Glance Lock Screen. Good to see you all. Saurabh Pant is saying, who is that? I'm not sure, yaar. Ye jo Saurabh Pant hai, he's a man of many talents. He wears many hats. I think yesterday's show mein he wore a different hat, but yes, Saurabh, if you're there, I know you're there. Hop onto the show. I'm going to start by playing AV for the first one we have here on our show, which is called T20 Adda. One more time, just for you viewers. जी हाँ दोस्तों, शो का नाम है T20 अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, कभी कभार आपका सूत्रधार, एंड joining me very, very soon, any second now, will be Saurabh Pant, who has time to comment on the stream but doesn't have time to join. Saurabh Pant, where are you? But to be fair, Saurabh को मैंने 12:40 का टाइम दिया और अभी जो है दोस्तों 12:40 हो चुके हैं. Yes, there he is. I'm waiting to see आज. Oh, this is Manvinder Bisla. Lovely. He's beaten Saurabh Pant to the finish line. स्वागत है मनविंदर बिस्ला साहब आपका फिर से इस शो पर. Yes, he'll be joining us any second now. I'm still waiting for Saurabh Pant, the very funny Saurabh Pant to join. दोस्तों आज हम बात करेंगे India versus Bangladesh at the Adelaide Oval, which will be starting in just under an hour from now. अभी खबर है कि Netherlands have managed to pull off a very fine win over Zimbabwe. This match did not have any bearing on Netherlands standing क्योंकि वो ऑलरेडी 3 मैच हार चुके थे. पर अच्छा लगता है जब ऐसे अंडरडॉग टीम्स एक विश्व कप में एक जीत अपने नाम कर देती है, हासिल कर देती है. Very, very good to see that. So until I am joined by Manvinder Bisla and Saurabh Pant, I've got another request here. Let's hope it works this time. आप लोग कहीं जाइएगा मत, अपने सवाल पूछिए, कुछ भी कहना है, मेरी जर्सी के बारे में कुछ कहना है या सौरभ पंत की टोपी के बारे में कुछ कहना है, तो आप अपने लॉक स्क्रीन द्वारा वो सवाल कर सकते हैं. I'm going to bring on Manvinder Bisla as well as Saurabh Pant onto the show now, and we'll get this T20 Adda episode going. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon, Jamie. Namaskar. And good afternoon, Saurabh. Hi, hello sir. How are you, Manvinder? What's going on? I'm fine, thank you. ये Hopefully आप भी नेदरलैंड अच्छे से होंगे. मतलब बहुत अब टाइम मैच लगा खत्म था होगा जब तक जीतने और के अच्छे लिए. होंगे. हाँ जी. मैं कहा जब तक मैच खत्म होगा होपफुली और अच्छे होंगे. अरे पर ये लोग मतलब ये बेकार में इंडिया बांग्लादेश का मैच डिले करवा रहे हैं. लाइक हमें हमें तो ये वी डोंट केयर नेदरलैंड्स विंस और लूजेस. वी जस्ट केयर कि बारिश ना हो जाए. सो आई डोंट नो व्हाई नेदरलैंड्स इज ये दिस इज अ कंस्पिरेसी. आई थिंक अभी पाकिस्तानी फैंस ने इंडिया के ऊपर काफी कंस्पिरेसीज की. नाउ आई एम गोइंग टू डू कंस्पिरेसीज ऑन पाकिस्तानी फैंस कि ये साजिश है पाकिस्तानी फैंस की. इन लोग ने नेदरलैंड्स को बोला भाई धीरे से खेलो ताकि मैच रेंड आउट हो जाए और हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाए. दिस इज माय न्यू कंस्पिरेसी. सो या ये आपने लाइव ग्लांस लॉक स्क्रीन पे ही सुना सौरभ पंत की conspiracy. Some viewers are saying welcome to both of you. Very nice to see your comments. Thank you guys. Keep your comments coming. You want to ask anything of our guests, you can ask me. सौरभ आज टोपी पहन के नहीं आए, शायद डालेंगे शो के बीच, बट कोई बात नहीं. आई एम गेटिंग माय टोपी ओनली. बिल्कुल आप तो हो ही टोपीबाज सौरभ पंत. Yeah, so look, it's India versus Bangladesh. हाँ कुछ आसार थे बारिश के, but the fact that मनोरंजन, I think the पहला मैच बिल्कुल ठीक गया था. Let's hope this continues again and we get a sunny evening in Adelaide. होपफुली बिल्कुल, क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर ना कोई बारिश की वजह से आपके वो कंपटीशन है ना खराब नहीं होना चाहिए, मैचेस खराब नहीं होने चाहिए. और जैसा पहला मैच हो रहा है कि पूरा खत्म हो जाएगा, बेशक वो अगर बारिश की वजह से कुछ रुके भी ना, छोटा मैच भी हो ना वो भी चलता है. बट तो बिना मैच खेले अगर टीम चली जाती है और फिर उसकी वजह से किसी का क्वालिफाई करने का थोड़ा सा वो खराब हो जाता है ना, तो मजा नहीं रहता क्रिकेट में. सो वेदर कैसा भी हो, ठंड ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, मैच होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Absolutely. But बारिश के प्रॉब्लम्स के अगर हम एक तरफ रखते हैं, हाउ हैव यू टू एंजॉय द वर्ल्ड कप? आई हैव एक्चुअली एंजॉयड इट. हाँ 2-3 मैच वॉश आउट हुए, डीएलएस काफी दिख चुका है, पर एज अ कॉन्टेस्ट हैव यू एंजॉयड द वर्ल्ड कप सो फार?
बिल्कुल, अगर आप जिस तरीके से आप मुकाबले रहे हैं, वो आप वो देखते हैं ना जब एशिया में होते हैं, सिर्फ़ बॉलर्स पिटाई खाने के लिए आते हैं, सिर्फ़ बैट्समैनों का बोलबाला रहता है। बट ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में ना 50-50 है। सो कई मैचेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है, जैसे पिछला मैच आप इंडिया का देखेंगे तो इट्स अ गुड कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ना। बॉलर्स और बैट और बॉल के बीच में, जहाँ बॉलर्स के पास भी कुछ है, बैटर्स के पास भी कुछ है। और लगातार आप जब कंपटीशन देखते हैं ना, कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। आप हंड्रेड्स बने हैं, आप इतनी बढ़िया बॉलिंग करने को देख रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप जहाँ पे है ना, बैट और बॉल के बीच में ना लगातार 50-50 वाला कंपटीशन बना हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि दैट कि जो बैटिंग अच्छी करेगा वो जीत जाएगा। बिल्कुल। सौरभ, आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। और अमीन मनविंदर तो ही इज़ अ बैटर, या तो वो बोल रहे हैं कि भाई कॉन्टेस्ट थोड़ा अजीब रहता है, तो आई एम फुल्ली ऑन बोर्ड विद दैट। आई थिंक इट्स बीन वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। मतलब आई थिंक पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि ओपनर्स के सारे एवरेजेस थोड़े कम हो गए हैं कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी इन एशिया एंड ऑल दैट, क्योंकि बॉल हिल रही है। एंड तास्किर अहमद इज लाइक इज टेकिंग विकेट, सो आई मीन ही इज अ गुड बॉलर। बट आई एम फुली लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है कि 200 का जो स्कोर होता है T20 में, दैट शुड बी लाइक 1 आउट ऑफ 10 मैचेस। ये जो सारे मैचेस होते हैं जिसमें एक टीम 200 बनाती है और दूसरी टीम 200 को क्रॉस करके जीत जाती है, आई डोंट रियली एंजॉय वाचिंग इट। आई एम लाइक यार, कुछ तो रखो यार, मतलब आफ्टर अ पॉइंट लाइक बॉलर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें मुझे लगता है जो तीनों का जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है ना, वो 10-10 रन कम कर देना चाहिए हम तीनों को। नहीं, आज तो जरूर करना पड़ेगा। पर आप दोनों ने ये अच्छी बात छेड़ी है कि यस, द बॉलर्स अनलाइक इन एशिया, द बॉलर्स हैव हैड अ से इन ऑलमोस्ट एवरी मैच। थोड़ा ये भी तो मान के चलना पड़ेगा कि ला नीना के कारण इट्स द वेटेस्ट अक्टूबर इन ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मली ये उनका स्प्रिंग होता है, तो थोड़े ड्रायर सर्फेस होते हैं, पर नो डाउट द हैवी अमाउंट ऑफ रेन, द मॉइस्चर हैज एडेड फास्ट बॉलर्स। आई थॉट कि कुछ स्पिनर्स होंगे जो ज्यादा विकेट्स अब तक ले चुके होंगे। आई नो हसरंगा ने विकेट ली हैं, बट सैम करन और नेदरलैंड्स के बास डिलीड, ऐसे बॉलर हमारे टॉप बॉलिंग चार्ट्स पे है। सौरभ, यू मेंशन समवन लाइक अ तस्कीन अहमद। हाउ इंपॉर्टेंट इज समवन लाइक हिम टू हैव अ गुड डे? बिकॉज बांग्लादेश टेक्निकली अगर आज जीतते हैं बाय सम वे, दे विल आल्सो गो टॉप ऑफ दिस ग्रुप। हाँ, एब्सोल्युटली। बट ऑल्सो लाइक जो पिछला ये इन लोग ने जो मैच खेला था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, दे वर अबाउट टू विन इट, फिर दे वर अबाउट टू लूज इट, और एंड में इट वाज क्वाइट बोल्ड कि मतलब शाकिब अल हसन आगे 19वां ओवर डाल रहे थे, एंड देन ही टुक दैट रन आउट चांस, जो कई लोगों ने मतलब उस ओवर में दे वुड हैव सेड कि नहीं लेने का, विल बी ओवरथ्रोज। सो इट टुक अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम हिम एंड अ फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम हिम टू एक्चुअली मेक देम विन दैट मैच। और ये तो हर बार नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक, आई डाउट, मतलब एटलीस्ट कोहली जिस फॉर्म में है अभी, एंड आई थिंक केएल राहुल हैज अ पॉइंट टू प्रूव। अगर वो खेल रहे हैं, आई डोंट नो कौन खेलेगा, अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं किया कि क्या होने वाले हैं। बट या तास्किन अहमद इज आई थिंक की, बिकॉज व्हेन यू लुक एट बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका ने भी कहा उनके पास 2 बॉलर्स हैं। शाकिब ने तो कल ये भी कहा कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं। मतलब ऐसे कमेंट आते तो हमने कहा है, बट देन ऑब्वियसली यू लिसन टू द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप समझ सकते हो कि वो कहां से आ रहे हैं। बिफोर वी टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड, लेट्स गेट इनटू आवर फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड टोटल रिकॉल। मैं अगर इन दोनों टीम के बारे में बात करूं तो मुझे तो एक मैच जरूर याद आएगा। लेट मी पिक अप दैट एवी एंड देन वी कैन गेट इनटू द डिस्कशन। टोटल रिकॉल जेंटलमैन, आप तो इस सेगमेंट से वाकिफ हैं। आप अगर खुद की बात करूं तो वो 2016 वर्ल्ड कप का जो मैच था व्हिच इंडिया वन बाय वन रन, आई वाज सिटिंग देयर इन द प्रेस बॉक्स। फॉर द टू ऑफ यू, क्या इज दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी यू हैव, या मे बी द 2007 मैच जहां बांग्लादेश ने इंडिया को बाहर किया था? नहीं, ऑब्वियसली अगर आप पिछले कुछ 7-8 साल से देखते हैं ना, वो राइवलरी दिखती है आपको, जो कि कभी पहले शुरुआत में दिखती नहीं थी। जिस तरीके से वो क्लोज मैचेस रहे हैं, और वो जो नोक-झोंक दिखती है ना, वो इंडिया पाकिस्तान में कम दिखती है। आजकल इंडिया बांग्लादेश में ज़्यादा दिखती है। तो स्नेक डांस, और वो फिर वो निबास ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक की इनिंग, एंड जो लास्ट कुछ अगर आप 5-6 साल या 7 साल की बात करते हैं ना, वो मैचेस काफ़ी क्लोज होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली बांग्लादेश ने काफ़ी इंप्रूव किया है। और इसी वजह से ना वो थोड़े से जो एक छोटी सी राइवलरी आपको दिखती है। डेफिनेटली जो 2016 के मैच की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत क्लोज मैच था। और उस मैच में ना कभी भी लग रहा था कि ना कौन जीतेगा कौन हारेगा, यार इंडिया इतना टाइट कैसे खेल सकती है, हम लोगों को तो मैच कंफर्टेबली जीतना चाहिए था। तो मुझे लगता है 2016 का जो मैच था, जो जीतना था ना, इट वाज अ गुड मोमेंट, क्योंकि एटलीस्ट फाइनल में हम लोग, मतलब फाइनली हम जो जीत गए थे। Sort of regarding rivalry, na, don't you think like
India is that one Asian team जो बाकी सारे Asian team really want to beat? Absolutely. I mean, Shakil was. I didn't see the full press conference. उन्होंने पूरा क्या बोला वहाँ पर, but I'm sure. Like, did he say anything else barring this? Because honestly, I am totally. I know कि fans को तो ऐसे ही लगता है कि भाई पूरे टाइम हर टीम को नेदरलैंड्स को भी बोलना चाहिए कि हम जीतने आए हैं. This is like Kapil Dev in '83. Like we have to win. Like हर बार. But that's not. I mean, everybody has to be realistic. You can't like. I actually thought that Shakib Al Hasan was at least realistic and honest with his approach. बिकॉज कई लोग तो हर हर सबके सब ऐसे ही बोलते हैं कि हम जीत जाएंगे. बट या द राइवलरी इज इंटरेस्टिंग. आई रिमेंबर कि वो कौन सा 2007 इज द वन जब हम वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के से हारे थे एंड वी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. बिल्कुल वही आई वही रिमेंबर वही ये है किसने वही बोला है. था, आई थिंक वो तमीम इकबाल जिसने बोला था कि मैं अनिल कुंबले से एक लिफ्ट में मिला और फिर अनिल कुंबले ने बोला कि हम लोग तो सेमीफाइनल्स पहुंच ही जाएंगे. और फिर उसने सोचा कि लुक एट द एरोगेंस ऑफ दिस पीपल, दे थिंक दे विल रीच. And so I'm like, dude, you don't know what will induce somebody to get inspired. So I think what Shaggy was doing is underdogging it, which is good. I think good tactics. बिल्कुल good tactics. Let's put up a poll for our viewers here. पहला पोल है दोस्तों, द टीम विनिंग द टॉस शुड, आप लोग अपने लॉक स्क्रीन द्वारा जल्दी से वोट करिए 20 सेकंड के अंदर. शुड द टीम विनिंग द टॉस बैट फर्स्ट, क्योंकि बारिश के चांसेस हैं, एंड और शुड दे चूज टू बोल. अंटिल द व्यूअर्स गिव देयर पोल. मनिंदर, मैंने स्ट्रीम शुरू नहीं किया था और हाई के बाद जो दूसरा कमेंट था वो था कि केएल राहुल आज खेलेंगे. आई नो इट्स अ टॉपिक विच हम बहुत इस पे बात कर चुके हैं, बट द फैक्ट इज दैट द एक्सपेक्टेड from the fans, the pressure is building, क्योंकि all said and done इनके पास 3 फेलियर्स हैं. आई डोंट थिंक ये टीम कुछ चेंज करेगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग द फैंस, आपको क्या लगता है अगर कुछ बदलाव होगा तो कौन होगा वो आज इस टीम में? मुझे लगता है अगर पहली बात तो है ना कि टॉप ऑर्डर में बदलाव होते हुए कुछ नहीं दिखेगा. केएल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. ऑब्वियसली 3 इनिंग्स आप खराब हो जाती तो आपको बुरे प्लेयर नहीं बन जाते हैं. और हमेशा है ना बैट्समैन के बारे में कहा जाता है कि आप है ना सिर्फ दो, अगर आपकी फॉर्म खराब होनी होती है ना तो उसके लिए 3-4 इनिंग लगती हैं, 5 इनिंग लगते हैं. लेकिन फॉर्म में वापस आने के लिए सिर्फ आपको 2 बढ़िया शॉट आपके बैट के बीच में से एंड यू आर बैक इन फॉर्म, आपको कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है. और जिस तरीके से अगर ऑब्वियसली 2022 की बात करते हैं, थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे रहा है केएल का, बट उससे पहले आप देख लीजिए, इवन इन 3 इनिंग्स से पहले आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो केएल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. तभी वो उनको इतनी बैकिंग मिल रही है टीम मैनेजमेंट से, बिकॉज उनको पता है कि वो किस तरीके के प्लेयर्स हैं. और अगर इंडिया जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा तो आपको चाहिए कि केएल राहुल जैसे प्लेयर जिनका बैकफुट गेम बहुत अच्छा है कि वो फायर करें और इंडिया के लिए अच्छे मैचेस जीते, क्योंकि ऑन हिज ओन ही कैन विन योर मैचेस. जैसे हम ये बात रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं, हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, स्काई के बारे में बात करते हैं, तो टॉप 4 में मुझे लगता है केएल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कड़ी ऑफ आवर टीम. द अदर थिंग इज आवर हार्दिक के आसपास जो बैटर्स हैं वहाँ पे, कि दीपक खेलते हैं, कि ऋषभ को लेके आएंगे. ऋषभ का थोड़ा सा बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर मिल जाता है, एंड ही कैन बैट एट नंबर 5 ऑल्सो, कि अगर बाई चांस किसी मैच में आपके 2 विकेट जल्दी गिर गए तो इज रेडी टू बैट एट नंबर 5 ऑल्सो. अगर वो दिनेश वहाँ पे हैं तो दिनेश के साथ आप उनको 5 नंबर पे नहीं लेके आ सकते हैं. देन हार्दिक नीड्स टू कम एट 5. तो थोड़ा सा वो जो, और मैं वर्ल्ड कप में लगातार कहते भी आ रहा हूँ कि अगर कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे भी ना तो टैक्टिकल मिलेंगे, विकेट्स के हिसाब से मिलेंगे, ग्राउंड्स के हिसाब से मिलेंगे, पिचेस किस तरीके से हैं उस हिसाब से चेंजेस करते हैं. ये नहीं कि कि 2 मैच इनिंग किसी की खराब होगी तो आप उसको सडनली आप टीम से प्लेइंग 11 से निकाल देंगे. तो ये सब चीज़ें है ना वर्ल्ड कप से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कौन बेस्ट प्लेयर्स हैं, देन आप फिर पूरे वर्ल्ड कप में उसको बैक करते हैं. स्पेशली आपने एक चीज़ एमएसडी को करते हुए देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कितने, या इंडियन टीम के साथ भी जिन प्लेयर्स को बैक किया ना फिर वो लंबे टाइम तक बैक किया है. सो सेम थिंग आई थिंक टीम मैनेजमेंट नीड्स टू बैक केएल राहुल, क्योंकि वो एक फैंटास्टिक प्लेयर है. उनके पास ऑब्वियसली 3 मैचेस अच्छे नहीं है, बट 3 मैचेस खराब होने से वो खराब प्लेयर नहीं हो जाएंगे. No, that's very well said. आई थिंक अगर कोई प्लेयर है जिनका नाम विराट कोहली नहीं है तो वो केएल राहुल है, जिनके पास इतनी बैकिंग है इस टीम पे. बहुत सारे कमेंट्स हमारी बात से सहमत हैं कि ही शुड प्ले, पर a lot of them are saying he should go out. I just want to take a side step, सौरभ एंड मनिंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, शायद मैच टाइम पे शुरू नहीं होगा. ये जो परसों स्क्वाड्स आए थे, यानी न्यूजीलैंड टूर के लिए ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड, और उसके बाद बांग्लादेश टूर के लिए ओडीआई स्क्वाड एंड टेस्ट स्क्वाड, a lot of hue and cry they made कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्यों नहीं है.
Can I just get briefly your take on what you think? Forget the test matches, क्योंकि आखिर ये one day, sorry, ये T20 World Cup चल रहा है. But a lot of the big names have been rested. Someone like a Surya Kumar is going to both of them, and a lot of players have come back. But someone like a Shaw is not there. Shubman Gill is also there. A brief take, Maninder and Saurabh, on you on the white ball squads. ये तो एक्चुअली ये सवाल मैं मनोरंजन से भी पूछने वाला था, विच इज कि मतलब तुम स्क्वाड के अंदर हो और तुम दूसरे स्क्वाड से बाहर हो. लाइक आई मीन द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि मतलब दिनेश कार्तिक और अश्विन का तो दिस इज द लास्ट, प्रॉब्ली लास्ट टाइम इंडिया इज गोइंग टू कंसीडर देम इन T20s. पर आई वुड लव टू नो कि एज अ प्लेयर मतलब जब ऐसी कुछ अनाउंसमेंट होती है तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि भाई ये मेरा आखिरी मौका है प्रूव करने के लिए, और यू जस्ट गो अंडर मोर प्रेशर? नहीं, ऑब्वियसली जब जैसे कि हम हमेशा देखते हैं ना कि आपका जब जैसे वर्ल्ड कप, इट्स अ बैड टाइमिंग एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना. लेकिन वो टाइम जो इस वर्ल्ड कप के बाद और जो न्यूजीलैंड टूर स्टार्ट होने में ना, वो टाइम इतना ज़्यादा है नहीं. ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप आप कोई भी स्क्वाड अनाउंस ना करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी प्लेयर्स का लेट डाउन फील करे या कुछ भी खराब नहीं लगना चाहिए. एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, आई थिंक सिलेक्टर्स को भी नहीं लग रहा है, कि टीम मैनेजमेंट को नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में दिनेश या अश्विन होने वाले हैं. सो अगर वो नहीं होने वाले हैं तो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट कि आप उस वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स को पिक करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें ताकि आप वहाँ के लिए आप रेडी हों. ऑब्वियसली तो आप थोड़ा सा चाहते हैं कि शाहबाज उस टीम का पार्ट हो सकते थे, क्योंकि क्वालिटी ऑलराउंडर हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं. मुकेश कुमार पिछली सीरीज में थे, इस वर्ल्ड कप में नहीं है, बिना खेले वो ड्रॉप हो गए हैं. सो पृथ्वी शॉ लगातार जिस तरीके से वाइट बॉल में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी एक चांस दे सकते हैं, एक सीरीज दे सकते हैं कि हाउ इज गोइंग, बिकॉज he's गॉट अ एक्स फैक्टर. जिस दिन वो चलेंगे वो किसी भी टीम को फर्स्ट 6 ओवर्स में खत्म कर सकते हैं. तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन बट स्टिल लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड बिफोर दैट वर्ल्ड कप. सो अब बहुत सारे मैचेस मिलेंगे, सीरीज मिलेंगी आपको. सो बहुत ज़्यादा इस स्क्वाड्स को लेके विषय नहीं है चिंता कि कौन आया कौन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेलने जा रहे हैं. बट दिनेश कार्तिक, अश्विन, आप उनके एज को देखते हुए आप अगर उनको खिलाना भी है तो वर्ल्ड कप से, नेक्स्ट वर्ल्ड कप से 2-4 महीने पहले उनको वापस टीम में लेके आ सकते हैं. बट दिस इज अ टाइम टू गिव चांस टू अदर यंगस्टर्स. A lot of youngsters, बिल्कुल सही कहा, a lot of youngsters have been picked, a lot of youngsters have not been picked, and I agree with you कि ये टाइमिंग है, ये काफी अजीब है. बट दैट सेड एंड डन, ये जो टूर है न्यूजीलैंड का, ये वर्ल्ड कप फाइनल के मेरे ख्याल से सिर्फ 5 दिन बाद शुरू होने वाला है. प्लस इट्स हैपनिंग इन न्यूजीलैंड. डू यू थिंक, सौरभ एंड मनिंदर, कि द फैक्ट दैट कोर टीम यही है, दे वुड वांट टू से यार, it's like going from Noida to Delhi, going from Australia to New Zealand, rather than fly too many players, because the core players are actually here. ये शायद एक फैक्टर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद बांग्लादेश जाना, it's almost the same squad, ना? वैसे बीसीसीआई कैन चार्टर प्लेन्स इंडिविजुअली फॉर ईच प्लेयर है, उनके पास है पैसा. आई थिंक अगर बीसीसीआई बोले कि भाई हमें कल एयर इंडिया खरीदना है और फिर पृथ्वी शॉ अकेले फ्लाइट में आएगा, दैट्स लाइक आई थिंक क्वाइट पॉसिबल. एंड आई एम फुली लाइक, आई थिंक पृथ्वी शॉ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स टू वॉच है. मतलब और अभी आई थिंक सरफराज को भी टेस्ट स्क्वाड में नहीं लिया. एंड कैन यू इमेजिन नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ टेस्ट स्क्वाड आफ्टर एवरेजिंग 125? मतलब तुम ब्रैडमैन के आगे निकल गए, बट दे आर लाइक ना अभी नहीं, रुक जा. एंड यू गेट इट बिकॉज द कंपटीशन इज वेरी फियर्स. Yeah. The Shaw जैसे was सौरभ surprising. जेमी ने पूछा था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में, रेड, अगर वो ओवरऑल टूर के बारे में बात करते, तो जो आपने नाम लिया सरफराज का, आई थिंक एक वो बिगेस्ट सरप्राइज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का. अभी रॉबिन उथप्पा ने भी इनके बारे में लिखा था कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ देख रहे हैं तो उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस पिछले 2 साल 3 साल के अंदर किसी ने नहीं करी है. और वो खाली 1 साल की बात नहीं, लगातार 2-3 साल की बात है कि वो डबल हंड्रेड्स, बिग हंड्रेड्स इन ऑलमोस्ट ऑल द इनिंग्स, दिलीप ट्रॉफी, इंडिया जहां भी खेल रहे हैं वो रन्स बना रहे हैं. तो अगर आपको किसी एक प्लेयर्स को वो अपनी टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में फिर वो थोड़ा सा प्लेयर्स का मनोबल गिर जाता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि यार परफॉर्मेंस करने के बाद वो आपको उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. आई थिंक बांग्लादेश इस टूर पे वो उनको एक टीम में लेके आ सकते थे. ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर पैक्ड है, श्रेयस अय्यर अच्छा कर रहे हैं, स्काई एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो भी टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखें. बट सरफराज ने एक प्लेयर के द्वारा आप जो भी चाहते हैं परफॉर्मेंस, वो उन्होंने करके दिया. एंड आई थिंक वो काफी डिसअपॉइंटेड होंगे उनका स्क्वाड में ना आने से.
नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इट्स 2 इयर्स ऑफ कंसिस्टेंट फॉर्म। और परसों मैं इनके स्कोर्स देख रहा था। आपने बात की ना बिग हंड्रेड्स, ही एक्चुअली हैज बिग हंड्रेड्स। आई थिंक जो 8-9 शतक उन्होंने लगाया सरफराज ने, उसमें से एक ट्रिपल है, 2 डबल हैं, और जो बाकी हैं वो 150 से 180 के बीच है। तो ऑब्वियसली ही हैज एन एपेटाइट फॉर अ बिग थिंग, बट आई थिंक ही इज यंग और उनका समय आएगा। नंबर्स की बात करें, लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट सेक्शन कॉल्ड numbers game, and I'll run some numbers for you and our viewers, and let's see how much of the goals. नंबर गेम्स, क्विक लुक एट द स्टैट्स। ओवरऑल 11 मैच हो चुके हैं इन दोनों देशों के बीच। इंडिया हैव won 10 एंड ओनली लॉस्ट 1 टू बांग्लादेश। इस साल इंडिया ने 35 मैचेस खेले हैं, 25 जीत चुके हैं, 9 हार चुके हैं, एक नो रिजल्ट। और दिस इज द स्टैट जेन्टलमैन जहां पे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों नहीं रही है। बिकॉज 19 मैच खेले हैं, केवल 6 जीते हैं, 12 हार चुके हैं और एक नो रिजल्ट एट द वेन्यू फॉर टुडेज मैच। भारतीय टीम एक मैच खेल चुकी है, वो हारी है। Bangladesh have not played here. Interesting thing about this might be the most even pitch. यहाँ पे Pacers have taken 38 wickets, but they've given a lot more runs per over than the spinners have. Spinners ने केवल 20 विकेट ली हैं, पर इनकी इकोनॉमी 7.4 है as compared to 8.4 against the Pacers. आज का जो पहला मैच हुआ था, I think it might be a fair indication of how this match is going to go on. Speaking of how this match is going to go on, let's talk about the man of the moment once again. वैसे He पेसर्स का इकोनॉमी तो हमेशा हाई रहेगा बिकॉज इट्स दे बॉलिंग इन द डेथ एंड द बर्थ. in the death. But it's one of those almost Sydney like wickets जहां पे spinners will in fact come into the game. I think इस बार शायद ना हो because of all the wetness going around. But Maninder, just coming back to this man, फॉर्म में तो आ चुके हैं। दिस इज दैट परहैप्स दैट वन बोगी टीम, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैचअप्स ऑल थ्रू आउट दिस टी20 अड्डा सीरीज। इंडिया का एक परसीव्ड वीकनेस है कि शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को हमारे बल्लेबाज इतना डोमिनेट नहीं कर पाएंगे जैसे कि दे डू अदर थिंग्स। हाउ डू यू सी दिस मैच, क्योंकि बांग्लादेश के पास 3 या 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। Play Rishabh Pant. I think that's the best There thing we you can do go, because someone has said it. वो क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग करता है। आई थिंक जो टॉप 4 है ना, दे आर क्लास। मुझे नहीं लगता कि केएल, रोहित, विराट, स्पेशली स्काई, अगर स्काई फॉर्म में है तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज गोना प्ले हिज शॉट्स। एंड वो आई थिंक जितना अच्छा पेस के खिलाफ खेलते हैं, स्काई की बेस्ट चीज ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ भी उतना ही अच्छा खेलते हैं। आज से अगर आप मेरे से बात करते 3 या 4 या 6 महीने पहले, देर वॉज अ टाइम कि हम स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्पेशली रोहित की फॉर्म में वापस आने से, विराट जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, स्काई जिस फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस मैच में। और जैसे आपने स्पिनर्स की बात करी, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की, बांग्लादेश की हमेशा से ना एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है कि उनके पास एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज भी कर सकते हैं इस मैच के अंदर। आई थिंक वी शुड प्ले ऋषभ इंस्टेड ऑफ दिनेश, कि कि आपने अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो आप ऋषभ को बैटिंग करने भेज सकते हैं। जल्दी विकेट गिर गई तो आप 5 नंबर भेज सकते हैं, नहीं तो आप हार्दिक के बाद भी उनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वर्ल्ड कप से जो भी चेंजेस होंगे ना, वो थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज हो सकते हैं, ग्राउंड को देख के, बॉलिंग को देख के, बैट, उस हिसाब से आप थोड़ी सी अपनी टीम में हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हैं। और आई थिंक इस मैच में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम ऋषभ को देखेंगे मैच खेलते हुए। Interesting. Before I come to Saurabh, I'm going to put up a poll for our viewers here. Is India's problem against left arm spin the weakest link? आपके पास 20 सेकंड है दोस्तों, अपने लॉक स्क्रीन पे आप अपना व्यूज डालिए। आप सौरभ, just looking at Bangladesh last match में I saw, and you mentioned कि they nearly blew that match. उन्होंने 8 बैट्समैन खिलाए, 8। Probably they're not going to make that mistake against a team like India. Perhaps bring in another bowler because 8 बैट्समैन और फिर आप इतना कम स्कोर नहीं चेस कर पाए, you may as well give yourself another bowling option, no? Absolutely. By the way, update has come. Bangladesh has won the toss and chose to field. Well But I done, think Saurabh. Bangladesh का strategy यही है कि they have a lot of those fill-in bowlers, no, like जो बैटिंग भी करते हैं, bowling भी करते हैं, तो दोनों मतलब साथ, it's almost like become like
90s न्यूजीलैंड जो जहाँ सब कुछ भी कर सकते थे एंड दैट आल्सो सॉर्ट ऑफ सेज टेल्स यू कि मतलब व्हेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट ये बांग्लादेश का की बॉलिंग लाइक इट्स द फिज जो मतलब फिर भी अभी तक भी बहुत आउटस्टैंडिंग है इट्स Correct. शाकिब एंड नाउ इट्स ओकेजनली आई थिंक 1 out of 3 मैचेस इट्स तस्किन अहमद और बाकी सब तो ऐसे आके कुछ ना कुछ कर लाइक आई मीन इट्स लाइक अगर मैक्सवेल 2 विकेट चटका सकता है पहले ओवर में तो I mean, listen, I see Maxwell bowling and I get very angry. Because as a viewer, I'm like, क्या है यार? अरे मारना है इसको. And I think that's what batters also do. And then they get out very quickly. By the way, अभी squad का announcement होने वाला है. It's not happened yet, so we can soon find out कि because अगर मैं दिनेश कार्तिक होता अगर मेरी पीठ में इंजरी भी है, I would use my spine to bat because you never know if this is your last chance to play for India. So I don't think he would like voluntarily go out irrespective of अगर कोई निकल वगैरह है तो अभी 1-2 मिनट में पता चल जाएगा कि स्क्वाड क्या है फाइनली इंडिया का. अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी वन द टॉस आ रहा है अभी आई थिंक स्क्वाड्स आएगा यहाँ पर. बोलो बोलो, ऋषभ पंत खेलेगा नहीं खेलेगा? जल्दी बताओ दोनों के दोनों. खेलेगा सर, खेलेगा. I think so. मुझे भी लगता है खेलेगा. I think so. पर किसके प्लेस में? यू थिंक इट्स डीके के प्लेस में? DK. डीके. I'll just look for the You- squad if it's announced. You सौरभ कह please- रहा है मैं टीम पढ़ लेता हूँ फिर बताऊंगा. मैं तो ब्लेटेंटली खुल्ला चीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर. यहाँ पे कमेंट आया है सुबी सिंह का. आई थिंक इंडिया को पहले बॉलिंग करना चाहिए था, लेकिन हमारे दोस्त बांग्लादेश टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला ले चुकी है. बहुत व्यूअर्स कह रहे हैं आज इंडिया जीतेगा. हम चाहते क्या, हम जानते हैं कि इंडिया आज का मैच जीतेगा. बट इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज जस्ट टू स्टे ऑन द दिनेश कार्तिक टॉपिक, बिकॉज मैं आपकी बात से सहमत हूं. अगर पंत आएंगे तो इट विल बी फॉर डीके. बट मनिंदर, डीके का सिलेक्शन सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही था, बिकॉज लाइक यू सेड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप is a long time away. His selection was to be a finisher and that experienced player for this World Cup. तो अगर खेलते हैं या ना खेलते हैं, that feeling के यार I perhaps have not fulfilled that ambition. क्या ऐसे थॉट्स शायद दिनेश कार्तिक के मन में चल रहे होंगे अभी? बिल्कुल. आप क्योंकि अभी आई थिंक वर्ल्ड कप काफ़ी बचा हुआ है. ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप ओवर हो गया उनके लिए. बहुत सारे मैचेस बचे हैं. ये तो हमारा जैसे कि शायद ऋषभ खेलेंगे, हो सकता है दिनेश कार्तिक ही खेल रहे हो. यू नेवर नो कि इसी मैच में वो अपना एक इनिंग आप वर्ल्ड कप की जो आपकी ड्रीम होती है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं. और अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे लाइक कितने कमबैक्स करे हैं उन्होंने इस इंडियन टीम के अंदर. और जो वर्ल्ड कप उन्होंने कहा भी था कि 8-9 मंथ्स बिफोर आईपीएल कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो एक इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएंगे. लेकिन लगातार वो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया. उसके बाद जितने भी मौके मिले हैं, आई थिंक जो वो कर सकते थे, ही हैज डन हिज बेस्ट एंड ही हैज डन ए वेरी गुड जॉब. Correct. सो होपफुली अब इतना कुछ करने के बाद यू जस्ट कांट से कि मैंने अपना बेस्ट एफर्ट नहीं किया. Yeah. तो किसी प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो अपना 100% एफर्ट जरूर करें. रिजल्ट आना ना आना जरूरी नहीं है आपके लिए. I have a prediction to make, which is that I think India will play the same टीम आ squad. चुकी है, सौरभ देख लो. Akshar Patel will be coming in for Deepak Hooda. ये मेरी prediction है. टीम आ चुकी है, टीम आ चुकी है. दीपक हुडा बाहर है, अक्षर पटेल आ चुके हैं. कोई और चेंज नहीं है. हाँ, so Dinesh Karthik and by the way, Dinesh Karthik against Bangladesh in T20 आइज मतलब खेलना ही पड़ेगा ना एंड में जो अगर उनका MCU यूनिवर्स का अगर कहानी होगा तो दिस इज द ओरिजिन स्टोरी ऑफ दिनेश कार्तिक. तो आई मीन दिस इज वेयर नागिन डांस स्टार्टेड. ये सब यहाँ पर ही शुरू हुआ. तो दिस इज आई मीन एज इवन इफ आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म दैट वुड बी दैट यू हैव टू प्ले दिनेश कार्तिक. ये तो चांस ही नहीं है. So let's for our viewers' sake, let's look at the 11. वही 11 है, barring one change. KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या, हार्दिक, दिनेश कार्तिक is keeping. अक्षर पटेल आए हैं दीपक हुडा की जगह. रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह. बांग्लादेश प्लेइंग 11, नजमुल हुसैन, शंटो, लिटन दास. अच्छा, लिटन दास अब ओपन करेंगे. ओके, शाकिब अल हसन 3 पे, अफीफ, यासिर अली, मुसद्दक, शरीफुल, नूरुल हसन कीपर, मुस्ताफिजुर रहमान, हसन महमूद और तस्किन अहमद. Interesting. Let's put up a poll for our viewers here. What will India's power play score be, दोस्तों? 20 seconds on the clock. Will it be less than 40 or will it be more than 55? I want to say आज थोड़ा positive intent के साथ more than 55. But let's, until the viewers get into it, Maninder, this is a great chance. India are batting first. I mean, KL Rahul, Rohit Sharma, अगर इनका अच्छा power play score चला, I think, again, we're not getting to predictions yet, but I think आज काफी decent high scoring match हो सकता है.
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, यहाँ पे जहाँ पे रन्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि काफी। और एक स्ट्रांग इंटेंट से बैटिंग करेंगे, और जैसी बैटिंग इंडिया के पास है, आई थिंक इंडिया को अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है तो इस मैच में काफी अच्छा स्कोर बनाएंगे। 56% और सेइंग लेस देन 40। अच्छा, आप लोग पिछले मैच के अभी तक आप लोग उस हाल से निकल नहीं पाए हो। एवरेज स्कोर हियर बैटिंग फर्स्ट अंडर लाइट्स इज अबाउट 170। आई थिंक दैट आजकल आप जहां भी खेलते हो, आप अगर आप 120 से कम बना रहे हो तो आई थिंक यू हैव नॉट डन दैट मच, सौरभ। But again, Saurabh, this is a good chance because Bangladesh have dominated. So India have dominated Bangladesh. 11 मैच में से 10 मैच जीत चुके हैं। आपने सही कहा था कि a lot of the matches have been close, पर वर्ल्ड कप्स की बात करें, दिस इज अ मैच व्हिच इंडिया नीड टू विन, बिकॉज ये हो गया देन यू गॉट द नंबर वन स्पॉट, क्योंकि ये ग्रुप बहुत टाइट होने वाला है। साउथ अफ्रीका हैव द मोस्ट पॉइंट्स, बांग्लादेश इंडिया के पास 4-4 पॉइंट्स है। इंडिया वुड वांट टू सील देयर पैसेज एज सून एज पॉसिबल, सौरभ। नहीं, एब्सोल्युटली। और आल्सो आई थिंक जब इंडिया, जब कोई भी लाइक सम साइड व्हिच इज लोअर देन द अदर डिफीट्स द अदर, आई थिंक वो वकार यूनिस भी यही बोल रहे थे दैट यू हैव टू टेक रिस्क्स। तो हाँ, जब जब इंडिया बांग्लादेश के साथ हारी थी, तमीम इकबाल जस्ट वेंट फॉर इट इन दैट चेस, लाइक वो चेस कुड हैव बीन क्लोजर, ही जस्ट वेंट फॉर इट। तो अगर करेक्ट। कोई आके कुछ मतलब ज्यादा ब्रेवरी ना दिखाए बांग्लादेश की तरफ से, आई डोंट थिंक दे लाइक, अगर इंडिया 145 तक पहुंच जाए, वी शुड विन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रेन इज अराउंड, एवरीथिंग इज अराउंड, मतलब अनलेस डीएलएस का कुछ इंटरवेंशन ऐसा हो गया, बिकॉज आई डोंट थिंक द बांग्लादेश, लाइक एक शाकिब अल हसन है, वो कितना करेगा? The rest, they have that one lower order guy, I've forgotten his name. जो Heath is there, Musaddak is there, these guys can hit the ball. they can hit the ball, but अभी तक नहीं किया है ना. They've not really done it in this World Cup because again, longer Pitch boundaries, everything conditions. else. As a cricket expert, that I've become now, I know about. मेरे पास ये insight है, longer boundaries दोस्तों, मालूम है longer boundaries होती है ऑस्ट्रेलिया में. किसी ने सोचा ये? बहुत सही बात है। लेट मी पुट अप अनदर पोल क्विकली फॉर आवर व्यूअर्स। हु विल स्कोर द मोस्ट रन्स, केएल राहुल और रोहित शर्मा? मैंने सिर्फ दोस्तों इस पोल पे ओपनर्स पे फोकस किया था, क्योंकि आप लोग मतलब फैंस इतना इतना हड़बड़ी मचाते हो सोशल मीडिया पे, रोहित नहीं चल रहा, राहुल नहीं चल रहा, आप ही डिसाइड करिए दोनों ओपनर्स के बीच कौन ज्यादा रन बनाएगा। इसके बाद आई वांट टू गेट इनटू द क्विज सेक्शन। आज का क्विज में मैंने ज्यादा समय निकाला। आई वांट टू फाइंड समथिंग इवन ट्रिकियर। यू बोथ गोना बी लाइक, अरे यार इसने क्या कर दिया। बट हाँ, बहुत ट्रिकी है। मैंने और भी होमवर्क अरे किया पहले, था इस वाले पे। ये भी पहले वाले ही बहुत मुश्किल थे। हाँ, ये तो ऐसा है कि जिन बच्चों ने मतलब 6 स्टैंडर्ड में उन लोग ने वो फेल हो गए, उनको आईआईटी जेई करवा रहे हो। अच्छा है, और सॉरी। आपने आपने प्रॉमिस किया था कि पहले आप हमें आंसर लिख के दोगे मैसेज में, आपने मैसेज नहीं करा हमें हाँ, आंसर्स का। इंडिया इस इंडिया सेमीफाइनल जिस दिन पहुंचेगी उस दिन से आई विल ब्रेक द रूल्स एंड मैं आप दोनों को व्हाट्सएप करूंगा सारे क्वेश्चन, और मैं अलग अलग करूंगा। वन विल गेट द राइट वन विल गेट द रॉन्ग वन, और वो रैंडम सिलेक्शन होगा। पोल के मुताबिक 54% कह रहे केएल राहुल। आई थिंक द होल कंट्री वुड वांट KL Rahul to score more runs than Rohit Sharma for all the reasons which Manvinder had already raised. जेमी, आई वांट बोथ ऑफ देम टू स्कोर रन्स। बिल्कुल, हम सब चाहते हैं, जस्ट जस्ट फॉर द प्रेशर जिसका आपने जिक्र किया था, बीइंग अ बैट्समैन योरसेल्फ, आपने कहा था कि ही नीड्स टू गेट समथिंग एंड जस्ट गेट इट ऑफ हिज शोल्डर। आई थिंक बिटवीन द टू मोस्ट पीपल वुड से यार केएल राहुल रन बनाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट इतना जो एक हेट चल रहा है सोशल मीडिया पे। ही नीड्स नॉट दैट ही इज आंसरेबल टू एनीबॉडी, बट जस्ट टू लिफ्ट दैट बर्डन। आई थिंक ही वुड बी द वन टू स्कोर मोर रन्स, एंड और आई एक थिंक चीज ये है कि अगर केएल राहुल आज रन ना स्कोर करे, ओनली वन ऑफ द ओपनर्स इज गोना गेट ड्रॉप फ्रॉम द साइड इफ दे डोंट स्कोर टुडे। एक तो कप्तान है इसीलिए। हाँ, दैट्स व्हाट। सो मतलब केएल राहुल इज लाइक, अभी तो वो खेल रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है, राहुल द्रविड़ वगैरह ने बैक वगैरह किया है, बट यू नेवर नो। आई मीन, दिस माइट बी हिज लास्ट शॉट इन दिस वर्ल्ड कप, पता नहीं। You never know because this team often backs people a long time. Chaliye, let's go to the next section. This is our quiz section. I'll just bring it up for you. My favorite section. क्या ड्रम बजाते हैं ये लोग यार, इट्स लाइक समथिंग फ्रॉम वन ऑफ दोस ओल्ड मूवीज। चलिए दोस्तों, आपके लिए मतलब व्यूअर्स के लिए पोल के द्वारा ये सवाल आएंगे आप दोनों गेस्ट के लिए। I'll ask you straight up. In the first T20I between these two teams, an Indian bowler claimed his best figure in the format and was man of the match. Was it Ashish Nehra or Pragyan Oja? Debutant, best figures और मैन ऑफ द मैच पहली बार इस मैच में हुआ था। 2009 में हुआ था, मैं आपको क्लू देता हूं, 2009 में।
Oh, Pragyan Oja. Okay. Nehra प्रज्ञान also ओझा। made his debut in 2009. I'm just saying. Oh shit! I thought I've solved it. I'm just saying. I know. I'm just saying. तभी तो मैंने दिया ये गूगली 2009 वाला. अब एक काम करो ना, बता दो ना, एक थोड़ा सा हिंट दे दो कि वो स्पिनर था कि फास्ट बॉलर था। सर 52% हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं प्रज्ञान ओझा और 48 कह रहे हैं आशीष नेहरा. अब इससे आप तो अंदर किसकी साइड है? निकाल. दोनों दोनों ही बहुत आसपास है। लेफ्ट I आर्म would say स्पिनर I would दोनों. say Pragyan Oja. चलो, मैं तो आशीष भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं आशीष भैया के साथ जा रहा हूँ। चलिए, the answer is actually Pragyan Oja, 4 for 21. But Nehra made his debut not that far apart. Despite playing for so long, T20 टीम में वो 2009 में वापस आए थे काफी साल बाद. So that was actually, but the correct answer is Pragyan Oja. Well done, viewers. Next, How much did he take? 4 for 21. Oh wow. 4 for 21. चलिए, next question. In that famous 2016 World Cup match जिनका हमने जिक्र किया था, which India won by 1 run, who was the non-striker run out of the last ball? Was it Mustafizur Rahman or Shubhagato Home? कौन दूसरा वाला कौन था? Shubhagato Home. जेमी कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो यार? सर मैं इस मैच में था, मैं खुद भूल गया. I had to Google yesterday. मैं बैठ गया कितना धोनी के प्रेस बॉक्स, मुझे खुद याद नहीं था. 3 विकेट गिरे आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल पे कौन हुआ रन आउट? तो कैसे याद रहेगा? 3-3 विकेट गिर जाएंगी तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन सर 2 बिल्कुल सेट बैट्समैन थे, 2 उससे पहले. एक ने तो अपना नाक उस दिन नाक काट दिया, मुशफिकुर रहीम, वो तो नहीं थे. But one more was a proper set batsman and the third one was neither of them. So was it Mustafizur Rahman or Shubhagato Home? मैंने बहुत बड़ा क्लू दे दिया आपको. जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला. शुभगत होम. It's actually the Fizz, Mustafizur अरे Rahman. यार, ये fully misled ऐसा देखा क्या क्या टैक्टिक्स करके मनविंदर हम दोनों को बताया कि सौरभ, मुझे ऐसा लग रहा है जेबी हम दोनों के बिल्कुल कपड़े उतार रहा है यहाँ पे. हाँ, ये जैसे अमिताभ हमें बच्चन कहीं का नहीं छोड़ेगा इसके बाद. श्योर है कि ये सवाल है, दिस टू टेल यू कि गलत है. जेमीज उल्टा, जेमीज लाइक तुम सही गलत बोल रहे हो, मुझे पता लगा. मैंने कहा ना, मैंने थोड़ा ज्यादा होमवर्क किया. अबे आगे देखिए कौन कौन से सवाल आते हैं आप दोनों के लिए. आई लव दिस सेक्शन. चलिए, थर्ड क्वेश्चन. कहाँ गया क्वेश्चन? Did I change the question? Hang on. Which unique feat was achieved during the? एक second, I've got it. Sorry. What? टाइम ओवर. क्वेश्चंस खत्म. Actually मैंने यहाँ पे 5 लिखे. मैंने शायद अपलोड मैंने सिर्फ 4 ही किए थे. Which unique feat was achieved during a T20 match between these two teams in 2016? Did 4 bowlers have the exact same economy or did Jasprit Bumrah bowl 3 maidens in a row? मतलब क्या 4 बॉलर के फिगर्स एक जैसे थे या बुमराह ने लगातार 3 मेडन ओवर डाले? ओह, 4 बॉलर्स की सेम इकोनॉमी. ओके. बुमराह bowling 3 maidens back to back. It was a very कर सकता है. very damp 2016 Asia Cup. कर सकता है सौरभ बुमराह. हाँ, वो कर सकता है. मैं वही सोच रहा हूँ कि वो एंड में ना, जब ये सवाल आता है तुम बस दिमाग में सोचते हो कि कुछ ऐसी मेमोरी है क्या, तो दिमाग में कुछ बताओ. I'll go with 63% कह रहे बुमराह ने 3 मेडन डाले, 37 कह रहे 4 वाला. आई एम नॉट सेइंग बुमराह 3 मेडन का बोल दूंगा. बुमराह 3 मेडन. I think Maninder, you already said your choice, right? या. And you were spot on. अरे थैंक यू. First फाइनली. 4 bowlers, all of them 23 runs. 23 runs. Bumrah's first 3 overs went for only 3 runs though. Not making, but only 3 runs in that match. I mean, now I know what it feels like to be a Bangladeshi fan because they've disappointed me once again. अगर कोई देख रहा है इस फीड को तो हमें माफ करिए. ठीक है, चलिए let's move on to the next one. During the 2016 Asia Cup, which of these did not happen? Were there 7 power failures or the third umpire's cabin roof collapse? इनमें से एक नहीं हुआ था, एक हुआ था. कौन सा नहीं हुआ था? 7 एक बार power दोबारा. failures
या थर्ड अंपायर के कैबिन का रूफ टूटा बारिश के कारण? मुझे याद है इसमें बहुत पावर फेलियर्स हो रहे थे। आई थिंक आई डोंट नो कि 7 था कि नहीं, बट आई रिमेंबर दे बीइंग पावर फेलियर्स। I will go with first one. Which 7 did power not failures. happen, right? You're saying 7 power failures did not No, no, happen. sorry. I'm saying that ये दूसरा वाला नहीं हुआ. The Okay, the okay, umpire thing didn't happen. ठीक है तो मैं भी इसी की दूसरा वाला नहीं हुआ। दोस्तों। 51%, wow, very close. 51 have said power failures and 49% have said cabin roof. आप दोनों बिल्कुल सही हैं। 7 पावर फेलियर्स हुए थे। इसमें एक टावर ऑलमोस्ट गिर चुका था, इसमें आंधी आई, तूफान आया, डस्ट स्टॉर्म आया, बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद इंडिया ये मैच जीती, बहुत बड़ी बात है। बट देयर एक्चुअली वर 7 पावर फेलियर्स। देयर वाज अनदर मैच ड्यूरिंग द 2014 वर्ल्ड कप जहां पे ये हुआ था, बट दे डिड नॉट हैपन इन दिस मैच। सो वेरी यार वेरी ये नो कि उस टाइम को देखते समय ना कोई कहीं तो कोई मार्केटिंग जीनियस बैठा हुआ है कि भाई ये हमारे इन्वर्टर के लिए अच्छी पब्लिसिटी होगी कि as soon as बाबू is like hey Mendox इन्वर्टर्स इसको चलाओ तो मैच चालू रखो, ऐसा कुछ रहेगा उन लोग का पिच। वो था ना सिद्धू पाजी का लुमिनर इन्वर्टर लगाओ, कुछ था ऐसा उनका एक एड समथिंग। चलिए लास्ट वन, दिस वन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल वन मेरे हिसाब से। हु इज बांग्लादेश हाईएस्ट रन गेटर इन T20s वर्सेस इंडिया? शब्बीर रहमान या महमूदुल्लाह? Not two names you would assume, like I would have thought मुशफिकर, शाकिब, तमीम, ये लोग, but इनमें से एक है। यार मुझे तो ये भी याद नहीं है कि शबीर रहमान कौन था। अभी ओपनिंग किया था एशिया कप में। After a long time, he was called back. He was called back after about 4 or 5 years recently. He played a lot before. और दूसरा नाम है मोहम्मदुल्लाह। Mahmudullah, which I mean, like he's one of their all-time greats. या व्यूअर्स ने कहा 51% शब्बीर और 49% महमूदुल्लाह। ये भी सोच रहे होंगे कौन सा है इनमें से। आई किसी थिंक बांग्लादेशी फैन को गूगली ज्वाइन टाइप कराओ है, भाई। तो हम लोगों को शबीर रहमान। वही आंसर बताएगा। शबीर रहमान, आई थिंक ये वापस गूगली है बिकॉज यू वुड थिंक मोहम्मदुल्लाह सीम्स लाइक अ गुड ऑप्शन, बट शबीर रहमान सीम्स लाइक कि आया कैसे नाम उसका, तो आई वुड से शबीर रहमान। ओके, मैं भी शब्बीर के साथ जाऊंगा। बिल्कुल। 6 पारी में 236 रन बनाए शब्बीर रहमान ने। कब बनाए मुझे याद नहीं है, बट स्टैट्स के अनुसार यही है, वो स्टैट्स के मुताबिक। तो शुक्र है नहीं आज के मैच में नहीं खेल रहा ना। शब्बीर रहमान बिल्कुल नहीं है। This was a great segment. So do we have nothing else from the toss? We've covered all the news. I think we can get into the predictionary round. Okay, मेरा भी एक favorite है. Then we can wrap it up with a little bit more time pass talk. Predictionary coming up on your screens, दोस्तों। Oh, but yeah, 5 out of 5 I have got right again. Saurabh is waiting for me to make a mistake and put the wrong graphic up with the wrong हाँ segment. यार, चलिए, इंडिया बैटिंग फर्स्ट। मनिंदर, आपने कहा था कि ये एक काफी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। मैंने बताया था कि एवरेज स्कोर इज अबाउट 172 175। इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, कितना रन बनाएंगे और किस मार्जिन से टीम जीतेगी सर? 180 180, ओके। and I think we will win by 30 runs. 30 runs, okay, that's a great margin to win by. Mr. Pant, तो पहली मेरी प्रिडिक्शन है कि इंडिया टॉस हारेगी एंड दे विल गो टू बैट फर्स्ट। दिस इज माय फर्स्ट प्रिडिक्शन, ओके। बात है यार, बिना टोपी के। You're back on. पहली प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक गई है। और दूसरी ये तो नहीं थी कि अक्षर पटेल खेलेंगे दीपक हुड्डा की जगह। अरे एग्जैक्टली, you're a genius. I think इंडिया बनाएगी 152 एंड आई थिंक बांग्लादेश विल बी 137। यार कम ऑन सौरभ, आपको इंडिया की बैटिंग पे भरोसा ही नहीं है। नहीं है, हर नहीं, मुझे मैच पिच में भरोसा नहीं है। हर मैच में कितना है। दोस्तों आप लोग बताइए क्या क्या you can also cast your votes. Let me see if I can bring up a poll for these ones today as also. Poll for the viewers is who will top group 2. तब तक मैं सोचता हूं, आपने कहा 180 मनिंदर, सौरभ you're saying 152. I want to say at least 180, but again थोड़ा स्लो, इनके पास इतने स्पिनर्स हैं।
जब भी मैंने कहा कि ये टीम 200 पहुंचेगी, वो उसके आसपास ही नहीं पहुंचे, बट आई रियली वांट टू बैक दिस टीम. I'm going to say 188. I'm locking that 188. And Bangladesh 128. I don't know. I just feels like a I don't know. 188 and सौरभ, 128. ये कॉन्फिडेंस होता है, देखो, हाँ ये ये कॉन्फिडेंस है, ऐसा हाँ कॉन्फिडेंस मैं आपसे भी चाहता हूँ. आपके आपके स्कोर ही हमेशा कम होते हैं. Sort of नहीं 152, ये 153. Come on, Saurabh, buck up. जेमी सिकंदर राजा, आई एम शाकिब अल हसन. आवर कॉन्फिडेंस लेवल्स आर डिफरेंट. आदित्य कह रहे हैं 170 180. दैट्स आई थिंक दैट शुड बी ग्राउंड के मुताबिक. आदित्य, दैट शुड बी इट. बट उसके लिए बैट्समैन को रन बनाने पड़ेंगे. आई हैव नो डाउट कि विराट कोहली जब भी आएंगे वो कुछ तो करेंगे, और स्काई तो स्काई है. बट इफ द ओपनर्स गेट दैट स्टार्ट, जैसे कि हमने कहा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वन मोर थिंग मनिंदर, क्योंकि आपने जिक्र किया था रॉबिन उत्तपा का ट्वीट के बारे में. उन्होंने ये भी कहा था कि इवन आफ्टर द पाकिस्तान मैच आल्सो, इवन अगेंस्ट नेदरलैंड्स, कि ओपनर्स थोड़ा खुल के नहीं खेल रहे हैं. क्या कारण होगा? Because yes, the pitches have had a bit more than Asian grounds, like you said, but what could the possible reason be कि not one of them is actually going on and dominating the power play so far? आई थिंक थोड़ा बहुत पिच कंडीशंस भी आप कह सकते हैं कि कि पावर प्ले में वो मारना इतना आसान रहा नहीं है. और जो दूसरा बड़ा है ना कि हमारे ओपनर्स, रोहित ने एक 50 ज़रूर बनाई है, बट दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हुए हैं. जब आउट हो जाते हैं तो पावर प्लेज आपके अच्छे जा नहीं सकते. सो अगर आपके पास विकेट सेव करके रखें तो लास्ट, अगर आप 4 ओवर्स में 25-28 के आसपास भी हैं, तो लास्ट ओवर्स में आप पिक कर सकते हैं रन रेट को, क्योंकि विकेट नहीं गए आपके पास. विकेट हो आपके पास, आप खुल के खेल सकते हैं. बट वो शुरू के 4 ओवर में अगर विकेट चले जाते हैं तो नेक्स्ट बैट्समैन कमिंग इन अगेन टेकिंग हिज टाइम, तो वो बॉल्स काफ़ी सारी निकल जाती है. इसलिए अब तक पावर प्ले में अगर आप देखेंगे ना, वो काफ़ी एक्साइटिंग नहीं रहा है या ज़्यादा रन्स नहीं बने. सो इट्स केएल राहुल की तीनों इनिंग्स में वो रन्स नहीं बने. अगर वही दोनों बैट्समैन लगातार रन बना रहे हो तो एक मैच में अगर रोहित मारे तो नेक्स्ट मैच में अग्रेसिव अप्रोच केएल ले सकते हैं. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन कि ना, कि किसी दिन वो बैट्समैन की बैट पे अच्छी लग रही है तो वो एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं. सो अभी जो थोड़ा सा ये रहा है कि विराट ने ज़रूर बनाए हैं रन्स, बट विराट भी इनिशियली शुरू में आके थोड़ा समय व्यतीत करते हैं. वो आते ही ऐसा नहीं है कि आते ही वो बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं. सो फॉर अ गुड पावर प्ले, कि आपको 6 ओवर में 50 रन चाहिए, तो वो एक बैटर का एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है. और एग्रेसिव वो तभी होंगे जब वो थोड़ी पीछे फॉर्म उनकी लगी होगी. तो मुझे लगता है कि जैसे ही पिचेस अभी आप देख रहे हैं कि शुरू के 3-4 ओवर आप समय ले सकते हैं, उसके बाद लास्ट 2 ओवर में आप पावर प्ले को कैच कर सकते हैं और तेज़ी से रन बना सकते हैं. Saurabh, do you think, just picking up exactly what Manvinder is saying, the fact that they know कि यार पीछे हमारे पास एक तो हार्दिक पांड्या है ही, और ये जो 4 पे स्काई है जो किसी भी सिचुएशन पे आके लगातार कुछ कर सकते हैं, does that perhaps give them a bit of a cushion कि हाँ चलिए अगर रन नहीं बने, but if we keep wickets intact, having Sky is a terrific option to take a platform into that 200, which we've not seen scored yet. नहीं, और ऑल्सो द पिचेस आर वेरी डिफरेंट है. मतलब आई बैरली नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, पर इट्स लाइक यू कैन टेल. मतलब एशिया वगैरह एंड यूएई यू कैन इजीली शुरुआत से मारते रहो. यहाँ पर यू कांट. आई एग्री विद मनविंदर. आई थिंक थोड़ा लाइक आई नो कि केएल राहुल को काफी क्रिटिसिज्म मिली थी आईपीएल में, मतलब धीरे खेलने के लिए शुरुआत में. बट आई थिंक इन दीस काइंड ऑफ पिचेस इट्स ओके. मतलब सेटल डाउन हो जाओ. मुझे बस एक प्रिडिक्शन करनी है कि इस मैच में अगर केएल राहुल के बैट पे बॉल लगी, और चाहे वो स्टंप के डायरेक्ट बॉल इन फ्रंट ऑफ द मिडिल स्टंप, इवन इफ ही नॉक्स ओवर द स्टंप, ही विल स्टिल गो फॉर डीआरएस. आई थिंक इस बार वो रोहित शर्मा को बोलेगा ये वापस नहीं होने वाला. आई हैव टू टेक डीआरएस नाउ. इट्स लाइक जैसे सहवाग बोलते थे कि एक रिव्यू तो मैं ही ले लेता था और सबको बोलता था कि पैड पे लगा तो मैं लेने वाला हूं. सो आई थिंक केएल राहुल इज गोना गो विद दैट एटीट्यूड टुडे. यही है वो फोटो. रोहित कुछ कह रहे ले ले, केएल राहुल ने नहीं लिया. और मैं दोबारा कहूंगा, अगर उस दिन वो लेते तो दैट वुड हैव बीन द मैच वेयर ही फाइनली शेड्स ऑफ दैट शैकल एंड ही गोज ऑन टू गेट अ बिग स्कोर. बिल्कुल आप दोनों की इवन बात. जैसे भी आप बात करते हैं ना, आई थिंक अगर अगर मैं इस चीज कहता हूँ, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन स्काई कि वो रन रेट सिर्फ एक ही हमारी टीम में बैट्समैन है, सिर्फ हम उसी पे डिपेंड. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द टॉप 6 बैट्समैन. सो हर किसी को अपना गेम, स्काई नो डाउट कि जिस फॉर्म में है वो कुछ भी कर सकते हैं. ही कैन इन सम मैचेस यू कैन सी हिम 50 बना दिया 15 बॉल के अंदर. बट लेकिन बाकी जो बैट्समैन की जॉब है टॉप 6 के अंदर, उनको भी थोड़ा सा इफ दे स्कोर रन्स, हमारे में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि कि वो रन्स तेज गति से नहीं बनाएगा. इट्स इंपॉर्टेंट कि वो रन्स बनाए, क्योंकि रोहित के पास जो क्लास है, विराट, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, दे कैन ऑल प्ले एग्रेसिवली. इट्स इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्रीज में मौजूद रहें और वो रन्स बनाएं. तो जेवियन मनवेंदर, मैं वापस वो स्काई की इनिंग्स देख रहा था साउथ अफ्रीका के साथ.
and it is so interesting to watch कि मतलब वो रिस्क ले रहे थे, मतलब इवन ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ गेम ही प्लेज वो रिस्क ले रहे थे और वो प्रेशर बॉलर के ऊपर थोड़ा डाल रहे थे कि भाई ये करो. सो एंड दैट इज हिज गेम. तो लाइक इफ ही वाज नॉट स्काई, इफ ही वाज से दीपक हुड्डा एंड यू डिडंट नो हु ही वाज, यू वुड से कि भाई इतना रिस्क क्यों लिया, तू तो आउट हो गया. But so I think it's about backing what kind of game you have, and I think KL Rahul की game अभी it's been, I mean the reason why he selected in the side is because वो शुरुआत में थोड़ा आराम से खेलता है, then he explodes, and I think वही करना चाहिए इस बार भी. Let's hope it happens because I think अगर होगा तो आज 200 दिखाई देगा no matter what the conditions are. Manvinder Bisla, Saurabh Pant, thank you once again for your time. I've had a blast as usual. I hope you had as much fun as I did, and thank you to all our viewers. Let's enjoy the match, दोस्तों. Thank Bye-bye. you Manvinder, always a Bye-bye. pleasure, Jamie. See you guys, everybody. Let India win by 400 runs today. See you all. देखो मेरी positivity. चलिए, take care everyone. Bye. See you all. Bye.